తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకోండి. తర్వాత సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. తెలియని వారు అంజలి ఘటించి నమస్కారం చేసుకుంటూ మేము చెప్పేటువంటి మంత్రాలు పలకగలిగితే పలకండి, లేదా సమయం వచ్చినప్పుడు మేమే చెప్తాం, అవి పలికితే చాలు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిక్పాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాప్యదే నామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శశిరతో పాల్గుణమాసే శుక్లపక్షే కృష్ణపక్షే తిథింయాయాం పంచమ్యాం శుభరితౌ వాసరః సౌమ్యవాసరయుక్తాయాం శుభనక్షత్ర విశాఖానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభరితౌ అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, నక్షత్రము, మీ భార్య పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి, స్మరించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య అనుకూల సిద్ధ్యర్థం. మీరు దేనికోసమైతే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని చేస్తున్నారో, మీ కోరికలు కానీ లేదా మొక్కుబడి కానీ ఉంటే ఒకసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. இதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்றீங்களோ அந்த கோரிக்கையை ஒரு வாட்டி தாயாருக்கு विज्ञापन பண்ணுங்கோ. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रही है उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेलमंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేయండి, గోవిందనామస్మరణ చేయండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గో. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేన భగవతో. ఈ దేవ్యై నమః. వేదలక్ష్మ్యై నాదలక్ష్మ్యై శాస్త్రలక్ష్మ్యై நமோ நமக. நமஸ்தே சௌமியலக்ஷ்மியை மகாலட்சுமியை நமோ நமக. பக்தர்களே, சௌமியமான புதன்கிழமையில் தாயாரை நாம் இப்போது சௌமியலக்ஷ்மியாகவே தரிசிப்போம். அந்த தாயாரே இந்த திருச்சானூரில்
ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாராக வீட்டிலிருந்து தனியாட்சி செய்கிறாள். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளனோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து வேத மந்திரங்களை கேட்டு புண்ணியம் பல பெறுவோம். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி இப்போது செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாமும் நமது வேட்கையை அந்த தாயாருக்கு தெரிவித்து சபவருக்கு சமர்ப்பித்து இந்த பூஜையில் எந்த பிழையும் வராமல் இருக்க நாமும் அந்த தாயாரையே வேண்டிக் கொள்வோம். தாமரையில் வீட்டிருக்கும் பொன்னிறமான திருவேணி உடையவளும் மங்களகரமானவளான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை போற்றுவோம். அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருட்கடாட்சம் நம் அனைவருக்கும் அவசியமான ஒன்று. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி என்ற பதத்துக்கு இலக்கண ரீதியாக பல அருட்சக்தி அடையாளங்கள் இந்த தேவியிடம் நிலைபெற்றிருக்கின்றன. ஞானம், ஐஸ்வர்யம், சுகம், ஆரோக்கியம், தனம், தானியம், ஜெயம், வீரம் என்கிற அஷ்டலக்ஷ்மி வடிவங்களை நாம் அறிவோம். அவனால் இந்த தாயாரை அந்த அஷ்ட வடிவங்களோடு சேர்த்து சுதந்திர லக்ஷ்மியாகவும் தரிசிப்போம். ஏன் தெரியுமா? திருமலையில் நடக்கும் பிரம்மோற்சவத்தில் எம்பெருமான் வீதி உலா வரும்போது இருபுறமும் உபயநாச்சிமார்கள் வருவார்கள். ஆனால் இங்கே திருச்சானூரின் பட்டத்து ரணியாக எந்த உற்சவம் நடந்தாலும் எந்த விழா நடந்தாலும் தாயார் தனி ஒருத்தியாக சுதந்திர லக்ஷ்மியாக காணுகிறாள். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? எம்பெருமான் பக்தர்களுக்கு தனது திருவருளை தர வேண்டுமானால் புருஷகாரமாக தாயார் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தாயாரோ தன் குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய கருணா கடாட்சம் மூலமாகவே திருவருளை அள்ளித்தருகிறாள். ஆகவேதான் இவள் சுதந்திரமாக செயல்படுபவள் என்பது நமக்கு புரிகிறதல்லவா? அதனால்தான் தாயாரை நாம் சுதந்திர லக்ஷ்மியாகவும் கூடவே சௌமிய லக்ஷ்மியாகவும் வழிபடுகிறோம். அந்த தாயாரின் முக காந்தியில் தவழ்கின்ற புன்னகையே இவள் சௌமிய லக்ஷ்மி என்பதை நமக்கு தெரிவிக்கிறதல்லவா? ராமாயணத்தை சிறையிருந்தவள் ஏற்றம் என்பார் பட்டர். இதை பற்றி முதலியாண்டார் அருளும்போது பிராட்டிக்கு சிறையிருப்பு மாதிரி வைணவர்களுக்கு சம்சாரத்தில் இருப்பு. பிராட்டி இளைய பெருமாள் விஷயத்தில் அபச்சாரப்பட்டதால் பெருமாளை பிரிய நேரிட்டது. அதே போல சம்சாரிகளும் பாகவத அபச்சாரம் பண்ணினால் எம்பெருமானின் திருவடி சம்பந்தம் நமக்கு கிடைக்காமல் போகும். பிராட்டிக்கு அசோகவனம், சம்சாரிகளுக்கு தேக அவஸ்தை. பிராட்டிக்கு சுற்றிலும் அரக்கிகள், இவர்களுக்கோ மனைவி மக்கள் என்கிற பந்தம். பிராட்டிக்கு ஹனுமான் பகவானிடமிருந்து தூது வந்த மாதிரி இவர்களுக்கு ஆச்சாரிய சம்பந்தம். பிராட்டிக்கு ஹனுமன் ராமபிரானின் திவ்ய கல்யாண குணங்களை விவரித்தார் போல இவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்கள் உபதேசிக்கும் பகவத் விஷயங்கள். பிராட்டிக்கு ஹனுமான் எம்பெருமானின் கணையாழியை அடையாளமாக கொடுத்தது போல இவர்களுக்கு ஆச்சாரியன் மூலமாக திருமந்திர உபதேசம். பிராட்டிக்கு விபீஷணரின் மகள் திருஜடை ஒத்தாசையாக இருந்து தைரியம் சொன்னது போல நமக்கு பாகவதர்களின் சகவாசம், அவர்களுடன் நாம் அனுகரிக்கும் திவ்யமான உரையாடல்கள். ஆகவே பக்தர்களே, பகவானை பற்றிய விசேஷங்கள் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் உபகாரமாக இருக்கும். பிராட்டியே ஆனாலும் இந்த பூலோகத்தில் வந்த பின் எத்தனை சிரமங்களை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை பார்த்தோலமா? அப்படியும் அந்த பிராட்டி நமக்கு எத்தனையோ உபகாரங்கள் செய்கிறாள். தன்னை அடைந்து வழிபடுபவர்களின் சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். அவர்கள் எம்பெருமானோடு செய்யும் சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளச் சொல்லி எம்பெருமானிடம் சிபார்சு செய்கிறாள். பக்தர்களின் பிரார்த்தனையை பரிவோடு கேட்கிறாள். தன்னுடைய இன்னொரு அம்சமான பூமி பிராட்டியின் மூலம் எம்பெருமானுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை உணர்த்தி சரணமடைந்தவர்கள் செய்த பாப்பங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொள்ள வைக்கிறாள். இன்னொரு அம்சமான நீலாதேவியின் மூலம் அவர்கள் செய்த பாப்பங்களையெல்லாம் எம்பெருமான் திருவடிகளுக்கே தெரியாதபடி மறைக்கிறாளாம். அவர்கள் பிரபத்தி செய்ய முடியாமல் தடுக்கும் அவர்களது பாப்பங்களை எல்லாம் தனது திவ்யமான திருவருளால் நீக்குகிறாளாம். முடிவாக தன்னை அடைந்தவர்களை நல்ல குணமுள்ளவராக மாற்றி அவர்களை
பக்குவமடைய செய்கிறாள். இப்படி பிராட்டி நமக்கும் எம்பெருமானுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இருக்கிறாள். सरस्वती दुहे सर्पिर्मधूतकावमाने स्वस्त्ययनेः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हिता आवमानेर्दिशन्तु नः मथो अमुमान् समर्थयन्तु नः देवैः समाभृताः आवमाने स्वस्त्ययनेः घाघृतश्च्युतः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हिता तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा राजापत्यं पवित्रम् ततोऽद्यामकमहिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म प्रणीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो स्वस्त्या वरुणस्य मीत्स्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगञ्च पुनातु भूर्भुवस्सुवः संयोरावृणीमहे साधुं यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेषां वृष्टिर्घर्मनुघासीत् सज्जेशेनाजीवत् हे ब्रुवन् कस्मै न सत्रमास्महे हे स्या ओषधेर्न जनयामहिति हे दिवो वृष्टिमसृजन्त यावन्तस्तोका अभावज्जन्त तावतीरोषधयो जायन्त सा जाता पितरो विषेणालिम्बन् तासां जग्धारुभ्यन्तैत् ते ब्रुवन् कैदमिच्छमकरिति
वयं भागधेयमिच्छमाना इति पितरो ब्रुवन् किं वा भागधेयमिति अग्निहोत्र एव नोऽप्यस्तीत्यब्रुवन् तेभ्य एतद्भागधेयं रायच्छन् यद्भुक्त्वा निमार्ति ततो वैरोषधीरस्वदयन् एवं वेद सुदन्ते स्म ओषधयः ते वत्समुपावासजन् इदन्नो हव्यं प्रदापयेति सोऽब्रवीद्वरं वृणै समारात्रे जातन्नदोहन् आसङ्गमं मात्रा सहचरानीति तस्माद्वत्सञ्जातं दशरात्रेर्न दुहन्ति आसङ्गमं मात्रा सहचरति वारे मृतकृत्यस्य तस्माद्वत्सकं सकं सृष्टधयकं रुद्रोघातुकः अतिः सन्धान्धयति प्रजापतिरग्निमसृजता तं प्रजा अन्वसृज्यन्ता तमभागौपास्ता स्वस्य प्रजाभिरपाक्रामत् तमवरुरुत्समानोऽन्वयेत् तमवरुधन्नाशक्नोत् सतपोदप्यता सरराटादुदमृष्टा तद्घटमभवत् तस्माद्यस्य दक्षिणतः केशा उन्मृष्टाः ताञ्ज्येष्ठलक्ष्मी प्राजापत्येत्याहुः यद्रराटादुदमृष्टा तस्माद्रराटे केशा न सन्ति तदग्नौ प्रागृह्णात् तद्व्यचिकित्सत् जोहवानी आहौषा तद्विचिकित्सायै जन्म एवं विद्वान् विचिकित्सति वसीय एव चेतयते तं वा गर्भ्यवदज्जुहुधीति सोऽब्रवीत् अस्त्वमसीति स्वैव देवागित्यब्रवीत् सोऽजुहोत्स्वाहेति तत्स्वाहाकारस्य जन्म एवग्स्वाहाकारस्य जन्म वेद करोति स्वाहाकारेण वीर्यम् यस्यैवं विदुषस्वाहाकारेण जुह्वति भोगायैवास्य हुतं भवति तस्याहुत्यै पुरुषमसृजता तृतीयमजुहोत् सोऽस्वमसृजता तृतीयमजुहोत् सगामसृजता तदत्समजुहोत् सोऽविमसृजता पञ्चममजुहोत् सोऽजामसृजता सोऽग्निरबिभेत् आहुतिभिर्वैमाप्नोतीति स प्रजापतिं पुनः प्राविशत् तं प्रजापतिरब्रवीत् गायस्वेति सोऽब्रवीत् किं भागधेयमभिजनिष्यैति तुभ्यमेवेदकं हूयाता इत्यब्रवीत् स एतद्भागधेयमभ्यजायत यदग्निहोत्रं तस्मादग्निहोत्रमुच्यते तद्धूयमानमादित्योऽब्रवीत् माहौषीः उभयोर्वैनावेतदिति सोऽग्निरब्रवीत् कथं नौहोष्यन्तीति सायमेव तुभ्यं जुहवन् याधर्मह्यमित्यब्रवीत् तस्मादग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः आग्नेयी वै रात्रिः ऐन्द्रमः यदनुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् उभयमेवाग्नेयज्ञस्यात् उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति तथाग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः रात्रिं वा अनुप्रजा प्रजायन्ते अह्नात् प्रतिष्ठन्ति यत्सायं जुहोति त्रैवतेन जायते उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति प्रत्येव तेन तिष्ठति प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमवश्यत् तदुदिते सूर्ये जुहोत् यजुषान्यत् तोष्णीमन्यत् ततो वै स प्राजायत यस्यैवं विदुष उदिते सूर्येऽग्निहोत्रं जुह्वति त्रैव जायते अथो यथा दिवा प्रजानन्नेति तादृगेव तत् अथो खल्वाहुः यस्य वै द्वौ पुण्यौ गृहे वसतः यस्तयोरन्यकं राधयत्यन्यन्न
उभौ वा वसदा वृच्छतीति अग्निं वादित्यः सायं प्रविशति तस्मादग्निर्दूरान्नक्तन्ददर्शे वहि तेजसि सम्पद्येते उद्यन्तं वादित्यमग्निरनुसमारोहति तस्माद्धूमयेवाग्नेर्निवाददृशे यदग्नये सायं जुहुयात् आसूर्याय वृश्चेत यत्सूर्याय प्रातर्जुहुयात् आग्नये वृश्चेत एवदाभ्यः समदन्दध्यात् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिःसूर्यस्वाहेत्येव सायकं होतव्यम् सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहेति प्रातः ततो भाभ्यागं सायकं हूयते भाभ्यां प्रातः न देवताभ्यः समदन्दधाति अग्निर्ज्योतिरित्याह अग्निर्वैरेतोधाः प्रजाज्योतिरित्याह प्रजा एवास्मै प्रजनयति सूर्यो ज्योतिरित्याह प्रजास्वेव प्रजाता सुरेतो दधाति ज्योतिरग्निस्वाहेत्याह प्रजा एव प्रजाता अस्यां प्रतिष्ठापयति तूष्णीमुत्तरामाहुतिं जुहोति सुनत्वाय प्रजात्यै यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् यदातिथये प्रद्रुताय सूर्याय वसथायाहात्यकं हरन्ति तादृगेव तत् वाहतस्तद्भवतीत्याहो यत्स न वेद यस्मै तद्धरन्तीति तस्माद्यदौषसं जुहोति तदेव सम्प्रति अथो यथा प्रार्थमौषसं परिवेवेष्टि तादृगेव तत् रुद्रो वा एषः यदग्निः पत्नी शाली अधिश्रयेत् रुद्राय पत्नीमपि दध्यात् रमायुगा स्यात् उदीचोऽङ्गारान् निरोक्याधिश्रयति पत्नी गोपीठाय व्यन्तां करोति तथा पत्न्यप्रमायुगा भवति घर्मो वा एषोऽशान्तः आहारः प्रवृज्यते अग्निहोत्रं प्रतिषिञ्चेत् पशुकामस्य शान्तमिव हि पशव्यं न प्रतिषिञ्चेत् ब्रह्मवर्चसकामस्य समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो खलु प्रतिषिच्यमेव यत्प्रतिषिञ्चति तत्पशव्यं यज्जुहोति तद्ब्रह्मवर्चसि उभयमेवागः प्रच्युतं वा एतदस्माल्लोकात् अगतन्त्रेव लोकं यच्छर्दकं हविरनभिघारितम् अभिद्योतयति अभ्येवैनद्घारयति अथो देवत्रैवैनद्गमयति पर्यग्निकरोति अक्षसामुपहत्यै त्रिपर्यग्निकरोति त्र्यावृद्धियज्ञः अथो मेध्यत्वाय यत्राचीनमुद्वासयेत् यजमानकं सुचात्वयेत् यद्दक्षिणां हृदेवत्यग् स्यात् यत्रत्यग् पत्नीकं सुचार्पयेत् उदीचीनमुद्वासयति श्यानाकं शान्तादिक् तामेवैनदनोद्वासयति शान्त्यै पट्नकरोति यज्ञस्य सन्तत्यै निष्ठपति उपैव तत्स्तृणाति चतुरुन्नयति चतुष्पादपशवः पशूनेवावरुन्धे सर्वान् पूर्णानुन्नयति सर्वे हि पुण्याराधाः अनोज उन्नयति प्रजायानोजेनत्वाय अनोचेवास्य प्रजार्धुका भवति सम्मरसति व्यावृत्यै आहोष्यन्नुपसादयेत् यदाहोष्यन्नुपसादयेत् यथान्यस्मामुपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति तादृगेव तत् आस्मै वृश्चेत यदेवगार्हपत्येधिश्रयति तेन गार्हपत्यं प्रीणाति अग्निरबिभेद आहुतयो मात्येष्यन्तीति सेताकं समिधमपश्यत् कामाधत्ता ततो वा अग्नावाहुतयो ध्रियन्ता तत्समिधः समित्वं समिधमादधाति समेवैनं यच्छति आहुतीनां धृत्यै अथो अग्निहोत्रमेवेद्भमत्करोति आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति
यदेकाकं समिधमाधाय द्वे आहुति जुहोति अथ कस्याकं समिधि द्वितीयामाहुतिं जुहोतीति यद्वे समिधावादिद्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकाकं समिधमाधाय यजुषाण्यामाहुति उभे एव समिद्वति आहुति जुहोति आस्मै भ्रातृव्यं जनयति आदिप्तायां जुहोति समेद्धामिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो यथा तच्छिञ्जोतिः कृत्वा परिवेवेष्टि तादृगेव तत् चतुरुन्नयति विजुहोति तस्माद्विवात् चतुष्पादमत्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति उत्तरावतीं वै देवा आहुतिमजहवः वाचिमसुराः देवा भवन् परासुराः यङ्कामयदवसीयान् स्यादिति अनीयस्तस्य पूर्वकं हुत्वा उत्तरं भूयो जुहुयात् एषा वा उत्तरावत्याहुतिः तान् देवा अजुहवः तदस्ते भवन् यस्यैवं जुह्वति भवत्येव यङ्कामयदवापीयान् स्यादिति भूयस्तस्य पूर्वकं हुत्वा उत्तरं कनीयो जुहुयात् एषा वा अवाच्याहुतिः तामसुरा अजुहवः तदस्ते परा भवन् यस्यैवं जुह्वति पारैव भवति उत्तोपसादयत्जामित्वाय अथो व्यावृत्यै आर्हवत्यं प्रतीक्षते अननुध्यायिनमेवैनं करोति अग्निहोत्रस्य वै स्थाणुरस्ति तय्यर्च्छेद् यज्ञस्थाणुमृच्छेद् एष वा अग्निहोत्रस्य स्थाणुः यत्पूर्वाहुतिः तां यदुत्तरयाभिजुहुयात् यज्ञस्थाणुमृच्छेद् अतिहाय पूर्वामाहुतिं जुहोति यज्ञस्थाणुमेव परिवृणक्ति अथो भ्रातृव्यमेवाप्यातिक्रामति वाचीनकं सायमुपमाष्टि प्रेत एव तद्दधाति ऊर्ध्वं प्रातः प्रजनयत्येव तत् ब्रह्मवादिनो वदन्ति चतुरुन्नयति विजुहोति अथ क्वत्वे आहुति भवत इति अग्नौ वै स्वानर इति ब्रूयात् एष वा अग्निर्वै स्वानरः यद्ब्राह्मणः त्वाद्विप्राश्नाति अग्नामेव वै स्वानरे द्वे आहुति जुहोति द्वे जुहोति द्विर्निमाष्टि विप्राश्नाति षट् सम्पद्यन्ते பொன்னான புதன்கிழமையில் பொன்னே பெண்ணுரு கொண்டு வந்தது போன்ற தாயாரை நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சீதா பிராட்டி அருகில் இல்லாத போதுதான் ஸ்ரீராமன் தவறு செய்த தாட்டகை, வாலி, கரதூஷணர்கள், ராவண கும்பகர்ணர் போன்றோரை தண்டித்தார். ஆனால் தேவி அருகிலிருந்து வேண்டிக் கொண்டிருந்ததால் காகாசுரன் பிழைத்தான். ஆகவேதான் நாம் முதலில் இந்த ஸ்ரீயாகிய தாயாரை தரிசித்து அவளது திருப்பாதங்களை ஆசிரயித்தோமானால் பின்பு அவள் மூலமாக திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெறலாம். இது திருமலையானே நமக்கு விதித்திருக்கும் ஒரு கட்டளை, வழி, உபாயம் என்று கூட சொல்லலாம். அந்த தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது கன்னியாதான நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. திருவுக்கு மணாளனாததால் எம்பெருமான் திருமால், திரு என்கிற மகாலட்சுமியும் மால் என்கிற ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவும் சூரியனும் ஒளியும் போல இழைபிரியாமல் இருக்கும் ஆதி தம்பதிகள். இந்த ஜகத்துக்கே தாயானதால் இவள் ஜகத் ஜனனி. ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் இன்னுயிர் துணைவியானதால் இவள் ஸ்ரீ விஷ்ணு பத்னி. கருடன், ஆதிசேஷன், விஸ்வக்சேனன் போன்ற நித்தியசூரிகள், மிக மிக பெரியவர்களான நம் போன்ற பக்தர்கள் வரை அனைவருக்கும் தலைவியாக இருப்பதால் இந்த தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டே எம்பெருமான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீயப்பதே, ஸ்ரீபதி, ஸ்ரீநாதன் என்று போற்றப்படுகிறாராம். நீருண்ட கார்மேகத்தின் நடுவில் மின்னல் ஒளிர்வது போல நீலமேக சியாமளனான சிவன் நாராயணனின் திருமார்பில்
பொன்னிறமான இந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வீட்டிலிருந்து எம்பெருமானின் அந்த இருண்ட கருமேனியையே பிரகாசமாக்குகிறாளாம். இதைத்தான் சுவாமி தேசிகன் மானாதீத பிரதிதபிப்பவாம் மங்களம் மங்களானாம் பக்ஷக பீட்டிம் மதுவிஜயனோ பூஷயத்தீம் ஸ்வகாந்தியா என்று குறிப்பிடுகிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட தாயாரைத்தான் இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். செந்தாமரை மலரில் செம்மாந்து வீட்டிருக்கும் நந்தா விளக்கே நறுந்தார் இளம் கொழுந்தே என்று கம்பராமாயணத்தில் தாயாரை இந்த மலர்மகளை போற்றியுள்ளார். ஆகவே அந்த தாயாரை இப்போது நாமும் இந்த கன்னியாதான நிகழ்வில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, பேயாழ்வார் திருவகளை பார்த்து போற்றுகிறாராம். சிவந்த திருமேனியுடன் திகழும் திருவகளையே பார்த்து பார்த்து திருமாலின் திருக்கண்கள் செந்தாமரை போல சிவந்தனவாம். கார்மேக நிறம் கொண்ட திருமாலையே பார்த்து கொண்டிருப்பதால் தாயாரின் கருவிழிகள் இன்னும் கருத்தனவாம். அது மட்டுமல்ல, தாயாரின் கருவிழிகள் பட்டதால் திருமாலின் திருமேனி இன்னும் கருத்து போக, திருமாலின் சிவந்த விழிகள் பட்டதால் தாயாரின் மலர்மேனி இன்னும் சிவந்து விட்டதாம். இப்படியாக அவர்கள் திருமேனிகளின் வண்ணத்துக்கு காரணம் கூறுகிறார் பேயாழ்வார். எந்த மாதிரியான பக்தி சுவை ஆழ்வாரின் பாசுரங்களில் நாம் பார்க்கிறோம். அந்த தாயாருக்கு நடைபெறும் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நாம் தாயாரை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வரமருளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, அக்ஞான இருள் நீக்கும் ஒளியான லக்ஷ்மி, அகில உலகத்தையும் ஆளுகின்ற ஆனந்த லக்ஷ்மி, சகல உயிர்களையும் தன்னுயிராய் காக்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, அண்ட பிரம்மாண்டத்தை நிலைநாட்டும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி என்று இந்த தாயாரை பலவிதமான லக்ஷ்மிகளாக நாம் போற்றுவோம். பார்க்கடலில் உதித்த திருமகளே மகாலட்சுமி, பாருலகம் செழித்திடவே பகிர்ந்தருளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை நாம் வணங்குகிறோம். இனி அடுத்து தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் அக்னி பிரதிஷ்டை. तद्गर्भाणां तस्मात् गर्भा अनश्नन्तो वर्धन्ते यदाचामदि तन्मनुष्याणाम् उदङ्पर्यावृत्या चामदि आत्मनो गोपीठायां यज्ञेनेऽग्निशुद्ध्यै निष्ठपदि स्वगाकृत्यै उद्दिशति सप्तर्षीणेव प्रीणाति दक्षिणावर्या वर्तते स्वमेव वीर्यमनुपर्या वर्तते तस्मात् दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावत्तरः अथो आदित्यस्यैवावृतमनुपर्या वर्तते हुत्वोपसमिन्धे ब्रह्मवत्यसस्य स्मिध्यै न बर्हिरनुप्रहरेत् असर्गस्थितो वा एष यज्ञः यदग्निहोत्रम् यदनुप्रहरेत् यज्ञं विच्छिन्द्यात् तस्मान्नानुप्रहृत्यम् यज्ञस्य सन्तत्यै अपो निनयति अववृथस्यैव रूपमगः ब्रह्मवादिनो वदन्ति अग्निहोत्रप्रायणा यज्ञाः किं प्रायणमग्निहोत्रमिति वत्सो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम् अग्निहोत्रं यज्ञानां तस्य पृथिवी सदः अन्तरिक्षमाग्नेध्रम् द्योरहविद्धानम् दिव्यावप्रोक्षणयः ओषधयो बर्हिः अनस्वतयैध्मः दिशः परिधयः आदित्यो यूपः जवानः पशुः मुद्रोऽवभृथः संवत्सरस्वगाकारः तस्मादाहिदाग्ने सर्वमेव वह्निशं दत्तं भवति यत्सायं जुहोति रात्रिमेव तेन दक्षिण्यां कुरुते यत्प्रातः अहरेव तेन दक्षिण्यं कुरुते यत्ततो ददाति सा दक्षिणा यावन्तो वै देवा आहुतमादन्ने ते पराभवन् एतदग्निहोत्रकं सर्वस्यैव सामाबाधाया जुहवोः तस्मादाहुः अग्निहोत्रं वै देवा गृहाणां निष्कृतिमुपश्यन्निति यत्सायं जुहोति रात्र्या एव तद्धुताद्याया यजमानस्यापराभावाय यत्प्रातः अह्न एव तद्धुताद्याय यजमानस्यापराभावाय यत्ततोऽस्नाति उतमेव तत्
वयो पयसा जुहुयात् पशुकामस्य एतद्वाग्निहोत्रं मिथुनम् एवं वेद प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते इमामेव पूर्वयादुभे अमोमुत्तरया अधिश्रित्योत्तरमानयति यो नामेव तत्रेतस्सिञ्चति प्रजनने आज्येन जुहुयात् तेजस्कामस्य तेजो वा आज्यम् तेजस्वेव भवति वयसा पशुकामस्य एतद्वै पशूनागं रूपेणैवास्मै पशूनवरुन्धे पशुमानेव भवति दध्नेन्द्रियकामस्य इन्द्रियं वै दधीम् ग्रामकामस्य औषधा वै मनुष्याः भागधेयेनैवास्मै स जाता नवरुन्धे ग्राम्येव भवति अयज्ञो वा एषः यो सामा चतुरुन्नयति चतुरक्षरगं रथन्धरस्यैषवर्णः उपरीवहरति अन्तरिक्षं वामदेव्यस्यैषवर्णः विजुहोति व्याक्षरं बृहद एषवर्णः अग्निहोत्रमेव तत्सामन्वत्करोति यो वा अग्निहोत्रस्योपसदो वेद उपैनमुपसदो नमन्ति इन्दत उपसत्कारम् उन्नीयोपसादयति पृथिवीमेव प्रीणाति ओष्यन्नुपसादयति अन्तरिक्षमेव प्रीणाति उत्तोपसादयति दिवमेव प्रीणाति यथा वा अग्निहोत्रस्योपसदः एवं वेद उपैनमुपसदो नमन्ति इन्दत उपसत्कारम् यो वा अग्निहोत्रस्याश्रावितं प्रत्याश्रावितं होतारं ब्रह्माणं मषट्कारं वेद तस्य त्वेव हुतम् प्राणो वा अग्निहोत्रस्याश्रावितम् अपानप्रत्याश्रावितं मनोहोता चक्षुर्ब्रह्मा मेषो वषट्कारः एवं वेद तस्य त्वेव हुतम् सायं यावानश्च वै देवा प्रातर्यावानश्चाग्निहोत्रिणो गृहमागच्छन्ति तान् यन्न तर्पयेत् प्रजया अस्य पशुभिर्वितिष्ठेरन् यत्तर्पयेत् कृतायेनं प्रजया पशुभिस्तर्पयेयुः सजोर्देवैः सायं यावभिरिति सायकं संरसति सजोर्देवैः प्रातर्यावभिरिति प्रातः ये चैव देवाः सायं यावानो ये च प्रातर्यावानः तानेवोभयागस्तर्पयति तेनन्दृप्ता प्रजया पशुभिस्तर्पयन्ति अरुणोः स्माहौपवेशिः अग्निहोत्र एवाहकं सायं प्रातर्वज्रं भ्रातृव्येभ्यः प्रहरामि तस्मान्मत्पापीयागुंसो भ्रातृव्या इति चतुरुन्नयति विजुहोति समित्सप्तमी सप्तपदा चक्वरी शाक्वरो वज्रः अग्निहोत्र एव तत्सायं भ्रातर्वज्रं यजमानो भ्रातृव्याय प्रहरति भवत्यात्मना रास्य भ्रातृव्यो भवति प्रजापतिरकामयतात्मन्वन्मे जायेतेति सजुहोत् तस्यात्मन्वदजायत अग्निर्वायुरादित्यः ते ब्रुवन् प्रजापतिरहोषीदात्मन्वन्मे जायेतेति तस्य भयमजनिष्महि जायतान्नात्मन्वदिति तेजुहवः प्राणानामग्निः तनु वै वायुः चक्षुषादित्यः तेषाकं हुतादजायत गौरेव तस्यै वयसि व्यायच्छन्त मम हुतादजनिममेति हे प्रजापतिं प्रश्नवायन् स आदित्योऽग्निमब्रवीत् यतरो नो जयात् तन्नो सहासदिति कस्यैकोहौषीदिति प्रजापतिरब्रवीत् कस्यैक इति प्राणानामहमित्यग्निः तनुवा अहमिति वायुः चक्षुषोऽहमित्यादित्यः एव प्राणानामहौषीत् तस्य हुतादजनीति अग्नेर्हुतादजनीति तदग्निहोत्रस्याग्निहोत्रत्वं गौर्वाग्निहोत्रम् एवं वेद गौरग्निहोत्रमिति
प्राणापानाभ्यामेवाग्निगं समर्थयति अव्यर्धुकप्राणापानाभ्यां भवति य एवं वेद तौ वायुरब्रवीत् अनुमा भजतमिति यदेवगार्हवत्येधिश्रित्या हवनीयमभ्युद्रवान् तेन त्वां प्रीणानि च ब्रूता तस्माद्यद्गार्हवत्येधिश्रित्या हवनीयमभ्युद्रवति वायुमेव तेन प्रीणाति जापतिर्देवता आसृजमानः अग्निमेव देवतानां प्रथममसृजता सोऽन्यदालम्भ्यमवित्वा प्रजापतिमभिपर्यावर्तत समृत्योरबिभेद सोममादित्यमात्मनो निरमिमीता जगं हुत्वा परां पर्यावर्तत ततो वै समृत्युमपाजयत् अपमृत्युञ्जयति एवं वेद तस्माद्यस्यैवं विदुषः उदैकाहमुदद्यहन्न जुह्वति उतमेवास्य भवति असौ त्यादित्योऽग्निहोत्रं रौद्रं गवी वायव्यमुपसृष्टम् आश्विनं दुह्यमानं सौम्यं दुग्धं वारुणमधिश्रितं वैश्वदेवाभिन्दवः औष्णौदन्तं सारस्वतं विश्यन्दमानं मैत्रकं शरः धातुरुद्वासितं बृहस्पतेरुन्नीतं सवितुप्रक्रान्तं यावापृथिव्यग्क्रियमाणम् ऐन्द्राग्नमुपसन्नम् अग्नेः पूर्वाहुतिः प्रजापतेरुत्तरा ऐन्द्रकं हुतं दक्षिणतः उपसृजति लोकमेव तेन जयति प्राचीमावर्तयति देवलोकमेव तेन जयति उदीचीमावृत्यदोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति पूर्वौ दुह्यात् ज्येष्ठस्य ज्यैष्ठिनेयस्य यो वा गतश्री स्यात् अपरो दुह्यात् कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य यो वा बुभूषेत् न संमृशति पापवश्यव्यावृत्यै वायव्यं वा एतदुपसृष्टम् आश्विनं दुह्यमानं मैत्रं दुग्धम् अर्यं नवद्वास्यमानं स्वाष्ट्रपुण्यीयमानं बृहस्पतेरुन्नीतं सवितुः प्रक्रान्तं यावापृथिव्यग्क्रियमाणम् ऐन्द्राग्नमुपसादितं सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहोति यथा खलु वैधेनं तीर्थे दर्पयति एवमग्निहोत्री यजमानं दर्पयति कृप्यति प्रजया पशुभिः रसुवर्गं लोकं जानाति पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यौ चैन देवं वेद त्रयो वै प्रयमेधा आसन् तेषां त्रिरेकोऽग्निहोत्रमजुहोत् द्विरेकः सकृदेकः तेषां यस्त्रिरजुहोत् सर्जा जुहोत् यो द्विः स यजुषा यः सकृत् स तूष्णीं यश्चेजुषा जुहोत्यश्च तूष्णीं तावभावार्नुताम् तस्माद्यजुषाहुतिः पूर्वाहोतव्या तूष्णीमुत्तरा वे एवर्धी अवरुन्धे अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहेति सायं जुहोति प्रेतैव तद्दधाति सौर्यो ज्योतिर्ज्योतिःसूर्यस्वाहेति प्रातः प्रेत एव हितं प्रजनयति प्रेतो वा एतस्य हितं न प्रजायते यस्याग्निहोत्रमहुतकं सौर्योऽभ्युदेति यद्यन्ते स्यात् पुण्यप्राङ्मुदाद्रवेत् सौपसाज्जातमितो रासीता स यदा दाम्येत् अथ भूस्वाहेति जुहुयात् प्रजापतिर्वै भूतः तमेवोपासरत् स एवैनन्दत उन्नयति आर्तिमार्च्छति यजमानः यदग्निमुद्धरत् जानदभिजानत् सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपकल्प्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीय आयत्सम्भूतं भूतं
चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानारमग्यस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ಎಲಮಿನಿ ಎಡ ಕಾತಡು ಇಚ್ಚ ಕೊಡೆ ಕದ
సీసవెట్టినట్టివాడు చనకడటే ఆశ కొలిపినవాడు అట్టే కాగిలించడటే సీసవెట్టినట్టివాడు చనకడటే వాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు వాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు ఈ సుత్తికి నవ్వి నవ్వి ఏల పోరలేవే వాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు ఈ సుత్తికి నవ్వి నవ్వి ఏల పోరలేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాతడే బియరగడా ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే కదవే यदग्निमुद्धरति वसवस्तर्ह्यग्निः तत्प्रतियस्य तथापि जुक्वति वसुष्वेवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति निहितो धूपायञ्छेदे रुद्रास्तर्ह्यग्निः तस्मिन् यस्य तथाविधे जुक्वति रुद्रेष्वेवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति प्रथममिध्वमर्चिरा लभते आदित्यास्तर्ह्यग्निः तस्मिन् यस्य तथाविधे जुक्वति आदित्येष्वेवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति सर्व एव सर्वस इत्मादीप्तो भवति विश्वे देवास्तर्ह्यग्निः तस्मिन् यस्य तथाविधे जुक्वति विश्वेष्वेवास्य देवेष्वग्निहोत्रगं हुतं भवति नितरामर्चिरुपावैति लोहिनीकेव भवति इन्द्रस्तर्ह्यग्निः तस्मिन् यस्य तथाविधे जुह्वति इन्द्र एवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति अङ्गारा भवन्ति तेभ्योऽङ्गारेभ्योऽर्चिरुदेति प्रजापतिस्तर्ह्यग्निः जुह्वति प्रजापतावेवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति सरोऽङ्गाराध्योहन्ते ब्राह्मतार्ह्यग्निः तस्मिन् यस्य तथाविधे जुह्वति ब्रह्मण्येवास्याग्निहोत्रगं हुतं भवति वसुषु रुद्रेष्वादित्येषु विश्वेषु देवेषु इन्द्रे प्रजापतो ब्रह्मण्ये अपरिवर्गमेवास्यैतासु देवतासु हुतं भवति यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यौचैन देवं वेद तदन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति सायं परिषिञ्चति सत्यं सत्येन परिषिञ्चामीति प्रातः
अग्निर्वारुतम् अदावादित्यः सत्यम् अग्निमेव ददादित्येन सायं अग्निनादित्यं प्रातः सह यावदहोरात्रे भवतः तावदस्य लोकस्य नाट्यर्नरिष्टिः नान्तो न पर्यन्तोऽस्ति यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यवोचैन देवं वेद प्रजापतिरगामयत प्रजासृजयेति स एतन्दशहोतारमपश्यत् तं मनसा नुद्रुत्य दर्भस्तम्भे जुहोत् ततो वै स प्रजा असृजत तस्मात् सृष्टा वाक्रामन् ताग्रहेण गृह्णात् तद्ग्रहस्य ग्रहत्वं यः कामयेत प्रजायेति सदसहोदारं मनसा नुद्रुत्य दर्भस्तम्भे जुहुयात् प्रजापतिर्वैदसहोता प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजायते मनसा जुहोति मनैव हि प्रजापतिराब्धि पूर्णया जुहोति पूर्णैव हि प्रजापतिः प्रजापतिराब्धि न्यूनया जुहोति न्यूनाद्धि प्रजापति प्रजा असृजत प्रजानागं सृष्ट्यै दर्भस्तम्भे जुहोति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి కలిగిన రాశి ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి కలిగిన రాశి కుంభముల కొమ్మకును కుంభరాశి చెలగు హరి మధ్యకును సింహరాశి ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి కలిగిన రాశి చిన్ని మకరాంతపు పై ఎద చేడకు మకర రాశి కన్నె పాయ పుసటికి కన్నె రాశి చిన్ని మకరాంతపు పై ఎద చేడకు మకర రాశి కన్నె పాయ పుసటికి కన్నె రాశి వన్నెమై పైడి తుల దూగు వనితకు తులారాశి తిన్నని వాడి గోళ్ళ సతికి వృశ్చక
కర్కాటక రాశి. ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి గలిగిన రాశి. వృషభరాశి గామిడి గుట్టు మాటల సతి కర్కాటక రాశి. ఆముకొను నొరపుల మెరయు అతివకు వృషభరాశి గామిడి గుట్టు మాటల సతి కర్కాటక రాశి. కోమల పూచి గురుమోవి కోమలికి మేషరాశి ప్రేమ వెంకటపతి గలిసే ప్రియ మిథునపు రాశి. కోమల పూచి గురుమోవి కోమలికి మేషరాశి ప్రేమ వెంకటపతి గలిసే ప్రియ మిథునపు రాశి. ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి గలిగిన రాశి. ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నె నీ రాశి కూటమి గలిగిన రాశి.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ